हरे कृष्णा। स्वागत है आपका भगवत गीता के डेली सेशन में। तो आज हम भगवत गीता का 4.7 वर्स करने वाले हैं। बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है ये। तो आइए इसको रिसाइट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Word to word meaning: yada yada, whenever and wherever. He certainly dharmasya of religion, glanihi discrepancies, bhavati become manifested, bharata o descendant of Bharata, abhyuthanam predominance adharmasya of religion, tada at that time atmanam self srijami manifest aham I. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Purport by His Divine Grace Srila Siddhanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Purport. The word Srijami is significant here. In Srijami cannot be used in the sense of creation because according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of the irreligion. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of religiosity and a disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religion are direct orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto Him. And whenever such principles are disturbed by the demonic, the Lord appears. From the Bhagavatam we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authorities of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding annual sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendency still took to annual sacrifice without reference to the Vedic principles.
The Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense, to establish the Vedic principle of non-violence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission. And they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he is referred to by scriptures. It is not the fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and whenever he desires to appear. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representatives in the form of his son or servant or himself in some disguised form. The principle of the Gita, Bhagavad Gita, were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics in all incarnations of Lord. Therefore, the same principles are taught. But they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of 4 orders and the 4 status of social life, as will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness. Everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. हरे कृष्णा। तो इस सीरीज ऑफ वर्सेस में जो भगवद गीता के 4.1 से शुरू हो रहा है, भगवान बता रहे हैं डिफरेंट रीज़न कि वो गीता के बारे में कि उन्होंने वो ज्ञान कब दिया था और वो कब कब आते हैं ये ज्ञान देने के लिए। तो आज की चर्चा का विषय वही है कि कब कब भगवान आते हैं यह ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करने। तो जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि जब भी अधर्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, धार्मिक प्रैक्टिसेस में या कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज़ में गिरावट होती है, पतन होता है, या एक प्रिडोमिनेंट राइज होती है, एक हर जगह पे अगर अधर्म की का इंक्रीज देखते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण वो आते हैं, या तो स्वयं आते हैं या फिर उनका कोई दूत आता है या उनके सर्वेंट्स आते हैं, और ताकि वो धर्म का फिर से प्रचार करें और फिर से धर्म का उत्थान हो। धर्म मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल। और श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि सिर्फ सबसे पहली बात तो सृजामी का अर्थ यह नहीं है कि भगवान क्रिएट होते हैं या फिर भगवान जन्म लेते हैं। इसका यह है कि भगवान अवतार लेते हैं, यानी कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, कि वो अभी हैं नहीं, वो प्रकट हुए, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्ट होना। हम लोग जो लेते हैं वो जन्म लेते हैं। हम अपना एक नया शरीर, ये हमारा शरीर है, ये हमने प्राप्त किया, भौतिक शरीर है, और हम इस भौतिक शरीर को जब जन्म लेते हैं तो हम इस भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं। जब मृत्यु होती है तो हम इसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि यह शरीर जो है इसमें हमारा टाइम निश्चित जो था वो पूरा हो चुका है। अब हमको दूसरे शरीर की, फिर हम दूसरे शरीर में जाते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता, वो मैनिफेस्ट होते हैं, उनका शरीर वही रहता है, वो प्रकट होते हैं अपने उस शरीर में। और इसके अंदर में भगवान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है एक शेड्यूल पे आते हैं, कि जब भी ऐसा होगा तो उनका नियमित शेड्यूल है कि भाई द्वापर युग के अंत में और 28वां जो मिलेनियम होता है, 7वें मनु का, उसमें जो द्वापर युग होता है उसके अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं ब्रह्मा के एक दिन के अंदर अंदर। लेकिन भगवान की ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इन नियमों से, इन
रूल्स से बंधे रहें, इसीलिए क्योंकि वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं एक्ट करने में किसी भी तरह। इसीलिए वो जब भी आते हैं, मैंने प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, ना कि उनके ऊपर कोई रूल और रेगुलेशन है या फिर उनकी कोई ऑब्लिगेशन है उस प्रकार से। और फिर दूसरी बात, वो आके जो है धर्म के प्रिंसिपल हैं उनको रखते हैं, उनकी नींव रखते हैं, और सिर्फ भगवान, सिर्फ ईश्वर ही धर्म की नींव रख सकता है। हम कोई नया धर्म नहीं बना सकते, हम लिमिटेड हैं, हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। किसी को अपना कोई धर्म मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि भगवान जो है धर्म के नियमों को बनाते हैं, इस वजह से जो धर्म के नियम हैं वो भगवान के साक्षात ऑर्डर्स हैं, और हमको उनकी आदर करना चाहिए, हमको उनका सत्कार करना चाहिए। हम अगर एक धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि धर्म जो है वह ईश्वर के आदेश हैं, और जो कि जैसा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि इन ईच एंड एवरी इनकारनेशन ही स्पीक्स एज मच अबाउट रिलीजन एज कैन बी अंडरस्टूड बाय द पर्टिकुलर पीपल अंडर देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, बट द मिशन इज द सेम। तो जो भी अवतार होता है या फिर जो भी उनके भगवान के दूत आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या प्रचारक आते हैं, तो वो उतना ही बोलते हैं, उस इनकारनेशन में उतना ही ज्ञान देते हैं जितना कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में लोग समझ सकें, उसका पालन कर सकें। पूरा तरह से ज्ञान नहीं दिया जाता क्योंकि लोगों की लेने की क्षमता नहीं होती है। ज्ञान देने वाले की क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन लेने वाले की क्षमता नहीं होती। जिस प्रकार से अगर कोई मैथ्स का प्रोफेसर है, अगर वो नर्सरी क्लास के बच्चे के पास जाएगा या फर्स्ट क्लास के बच्चे के पास जाएगा तो उसके क्या 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 बताएगा, 1 2 3 4 और 10 तक गिनती उनको सिखाएगा। 10 तक गिनती सिखाने का अर्थ क्या है कि उसको आगे गिनती नहीं आती, या उसको गणित के जोड़ गुना भाग नहीं आते, या उसको मैथमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना नहीं आती, या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, या वो ज्योमेट्री नहीं आती, या फिर ये सब चीज़ें फील्ड उसको पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान जो दिया जाता है वो सामने वाले की से लेने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से दिया जाता है। आगे उसके पास कितना स्कोप है, कितने एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन और कितनी इक्वेशंस हैं, बाइनरी थ्योरम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो तो अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को समझाया जाएगा तो क्या कहेगा, क्या हो रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए क्या होगा, ए बी के बाद तो सी आता है ना, ये क्या हो रहा है, ये बालक जो है वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी समझने की क्षमता नहीं है। तो इसीलिए भगवान या उनके रिप्रेजेंटेटिव जब भी आते हैं तो उतना ही ज्ञान देते हैं जितना कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में जो लोग हैं वो ग्रहण कर सकें, उसे समझ सकें, आम जन हर कोई उसे अपना सके। तो ये है मेन। और क्योंकि उन टीचिंग्स को अगर वो अपनाएंगे, उनको ग्रहण करेंगे, उनको पालन करेंगे, तो उससे वो कृष्ण भक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे, ईश्वर के सम्मुख और क्लोज आएंगे और उनकी प्रगति होगी। गोल वही है। द वैदिक प्रिंसिपल्स पुश वन टुवर्ड्स कंप्लीट सरेंडर अनटू हिम। पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होना ही गोल है, लेकिन अलग अलग इनकारनेशंस में या फिर अलग अलग जगहों पे जब अलग अलग भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो उस प्रकार से ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर उस ज्ञान का कोई सही मायने में पालन करता है तो वो ईश्वर के पूर्णतया समर्पित हो जाएगा। ये जो है श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इस बुक में और इस तात्पर्य में, और ये एकदम सत्य बात है, इसे हम अपना के देख सकते हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई का धर्म का पालन करते हैं, तो हम ईसाई का धर्म का जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको जेन्युइनली अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें, अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें, और हम देखेंगे कि हम ये जो
हमारे जो द्वेष है और ये सब जो हमारे अंदर अनर्थ है, इनसे मुक्त होके हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि हम हर किसी जीव को समान भाव से देख पाएंगे, बराबरी से देख पाएंगे, किसी के प्रति कोई द्वेष हमारे मन में नहीं रहेगा। यही बात इस्लाम धर्म के लिए भी लागू होती है, यही बात बुद्धिस्ट धर्म के लिए भी लागू होती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध जब आए थे तो उस समय इतना अधर्म फैला हुआ था, लोग वैदिक सेक्रीफाइस के नाम पे निर्मम हत्या किए जा रहे थे जीवों की, ताकि वो सिर्फ मांसाहार कर सकें, उनका मांस का पान स्वाद ले सकें। तो भगवान बुद्ध आए थे, उनका पर्पस यही था कि ये जो इतना जो करप्शन था वैदिक प्रिंसिपल्स का, उसको रोका जाए। और उन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी अहिंसा के प्रिंसिपल की, ताकि वो अहिंसा का प्रिंसिपल स्थापित हो सके। तो हर कोई अवतार का, हर कोई इनकारनेशन का एक पर्टिकुलर मिशन होता है जिसके लिए वो आते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो आते हैं। तो in all incarnations of the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे 2+2=4 होता है। अब वो 4 बिगिनर क्लास में भी वही रहेगा, एडवांस क्लास में भी वही रहेगा, लेकिन एडवांस क्लास में जब व्यक्ति जाता है तो उनके कुछ हायर और लोअर मैथमेटिक्स होती है, जो कि हम जानते हैं कि भाई 2+2=4 ही होता है, आगे भी चल के वही होता है, लेकिन उनकी जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी वही रहता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो हायर और लोअर हो जाते हैं, वो वेरीड हो जाते हैं। तो उसी तरह प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सेम है। ईश्वर को कैसे सन्मुख होना, उनको कैसे सरेंडर करना, उनके टीचिंग्स के हिसाब से कैसे जीवन जीना, बस ये है कि वो डिटेल्स डिफरेंट हो जाती हैं। हर जगह गोल वही है, पर्पस वही है, क्या करना कि हर व्यक्ति में, हर जीव में कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भक्ति का उजागर करना और कृष्ण भावनामृत को फैलाना। बस उसकी डिटेल्स अलग अलग हैं, उसके प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। तो ये कारण है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। आगे हम और अभी इसके बारे में, और इतना ही तक सीमित नहीं है। ईश्वर जब आते हैं तो उनके बहुत सारे, एक तीर से बहुत सारे एक शिकार करने वाली बात होती है। तो वो आते हैं तो एक बार में बहुत सारे मिशंस वो हैं, वो टिक मार्क हो जाते हैं, वो अकम्प्लिश हो जाते हैं। वो उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।